बैठिए बैठिए, अभी आए नहीं। शुरू करते सर। काफ़ी दो ढाई हज़ार लोग जुड़े हुए तो ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? देखो यार इसको इतना Good afternoon and thank you for joining us for this very special occasion. I am Anushri Goyal from the National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and I will be your anchor for this first session of Arogya Dhara. Yesterday, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on social media announced that Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or ABPMJ crossed a historic milestone of providing 1 crore treatments since its launch on 23rd September 2018. To share this news with the nation and his followers all over the world, he shared his warm-hearted telephonic conversation with the 1 crore beneficiary Ms. Pooja Thapa of Meghalaya, an army soldier's wife who was suffering from ureter stones and had received treatment under PMJ. Honorable Prime Minister appreciated the doctors, nurses, healthcare workers and all associated with Ayushman Bharat. Ayushman Bharat PMJ is the Government of India's flagship health mission that provides financial risk protection to more than 50 crore or 500 million Indian citizens. It is the largest government-supported health assurance scheme in the world that provides a health cover of 5 lakh rupees per family, per eligible family per year to over 10 crore poor and vulnerable families to enable them to seek secondary and tertiary care at an empaneled hospital of their choice. Excuse me. Today we have come together on this digital platform in these unprecedented times to mark this milestone of 1 crore treatments under Ayushman Bharat, which is a landmark not just for India but also for public health anywhere in the developing world. So ladies and gentlemen, I am honoured to introduce you to all our esteemed speakers. I would like to first welcome our Chief Guest Dr. Harshvardhan, Honourable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India. I would also like to welcome Shri Ashwini Kumar Chaubey, Minister of State for Health and Family Welfare. I would like to extend a warm welcome to Dr. V.K. Paul, Member Health, NITI Aayog, and Dr. Indu Bhushan, CEO, Ayushman Bharat PMJ and National Health Authority, and Dr. Praveen Gedam, Additional CEO, National Health Authority. I would like to share that today we are joined by more than 2,000 participants from across the country and beyond on this webinar. So now, without further ado, let's begin this program. Today, we have joined for the first Arogya Dhara, which is a platform created to share knowledge and learnings from Ayushman Bharat between all stakeholders of the healthcare and public health ecosystem. I would now like to request Dr. Harshvardhan, Honourable Minister, to kindly cut the ribbon and formally inaugurate this first session of Arogya Dhara, Ayushman Bharat, 1 crore treatments and beyond. Thank you, sir. We hope and look forward to your guidance and blessings as we embark on making Arogya Dhara as a leading platform for all discussion on Ayushman Bharat. I now would like to request Dr. Indu Bhushan, CEO, National Health Authority, to kindly make his presentation on Ayushman Bharat PMJ, 1 crore treatments and beyond, and share the achievements and learnings so far. thank you very much. Thank you very much, Honesty, and Honorable Minister Saab, Honorable Mr. Chaubey Saab, and all the colleagues.
It's my pleasure to present to you today what we've done in Ayushman Bharat PMJ for last 1 year and 8 months and how the scheme has progressed in these 18 months. Can I have the presentation please? Is presentation coming? कैमरा तो स्विच करिए आप करके कैमरा तो स्विच करो इस पे कहाँ से जा रहा है इस पे फीड कहाँ से जा रहा है कहाँ से वहाँ से जा रहा है लैपटॉप पे टीम सचिन It was more than 1 year ago on 23rd of September 2018 when Honorable Prime Minister launched the scheme from Ranchi and Ayushman Bharat PMJ was one of the two pillars which supported Ayushman Bharat. The other pillar, Health and Wellness Center, was launched about 6 months ago in April 2018. Both of them together were made to provide the continuum of care starting from primary, promotive, preventive health to secondary and tertiary care. And Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana covered 54 crore people for 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization. One key feature of the scheme was portability, that people could take benefit not only in their states but anywhere in the country in any impaneled hospital. There was no cap on family size, age, gender and all pre-existing conditions were covered. This marked much improvement from previous schemes where only a cover of 30,000 was provided and there was a cap on family size. The planning for this scheme started on 1st of February when it was announced in budget of 2018. And in 6 months' time, a team was put together which helped in terms of defining policies, preparing guidelines, preparing training and capacity development material, erected the IT system, and worked with states to bring them on board of this scheme. And the pilot was started and announced by Honorable Prime Minister on 15th of August 2018. And the scheme was launched about 15 days later from Ranchi, Jharkhand. After that, the scheme has made steady progress, and starting with about 10,000 hospitals, it has now more than 21,000 hospitals, and the scheme has issued more than 12 crore cards to individual cards to beneficiary families. And as was mentioned, we have now more than 1 crore treatment. First 1 lakh treatment took about a month. Next 10 lakh treatments took about 4 months. And first 50 lakh treatment took more than a year. And the next 50 lakh treatment took only 7 months. And if it was not because of lockdown, probably we'll be doing 50 lakh treatment in 6 months and 1 crore treatment in a year. So we have made constant progress in this scheme. As shown on this map, right now 32 states and UTs have joined the scheme. 4 states and UTs. The 4 states who are still out are Odisha, Telangana, West Bengal and Delhi. And I'm happy to share with you, sir, that Delhi has decided to join the scheme, and hopefully in next 2 or 3 days we will be signing MOU with Delhi in front of you. Out of these states, we have given the flexibility in terms of mode of implementation. 20 states and UTs are implementing the scheme in a trust mode. 9 states and UTs are doing it in insurance mode, and 4 are in mixed mode. One other feature of the scheme has been that the scheme has provided a framework or fulcrum on which many other schemes have been joined.
states have combined several schemes together using the PM-JAM platform. For example, in Kerala, there used to be 3 schemes, now they're combined into one. Similarly, in Chhattisgarh, there were 7 schemes, they have now combined into one. Similarly, in other states also that has happened. This graph shows that many states have joined and actually expanded the beneficiary base which was originally there for PM-JAM, and right now we are covering, instead of 10 crore families, 13.2 crore families, including those included by our partner states. So far, more than 21,000 hospitals have been impaneled, and out of these, 9,500 hospitals are private hospitals, and one of the key features of the scheme has been portability, and in this, the 3 states which have provided most of the beneficiaries who have gone out are UP, Bihar and MP, and out of 1 crore treatment, more than 1 lakh treatment are for the portable treatments, and these are the people who are either living outside, are migrant workers, and or those who are living in areas where the supply of services and the quality of services is poor, and they are seeking good quality services outside their states. Out of these 1 crore treatment that we have provided, the commitment has been 13,000 crores. 54% of this is for tertiary care. As you know, sir, that the scheme was envisaged for serious illnesses, and therefore much of the resources under the scheme are going for tertiary care, and 64% of the resources have gone to private hospitals, and almost half, 48% of the beneficiaries are female, and 70% of treatments have gone to the age group 18 to 60. We are also collecting feedback from beneficiaries, and what we find is that more than 95% of beneficiaries, when we have called them, have called the services either very good or good. Only 4% termed the services as satisfactory, and 1% said either it was poor or very poor. And for these 1%, we have made additional calls and tried to find out how we can improve services, and based on that feedback, we are providing feedback to our state stakeholders and counterparts, as well as to hospitals. Similarly, we call beneficiaries 15 days after they have been discharged and find how they are feeling, and I'm happy to report that 91% of them say that they are feeling better. Only 6% say that there is no improvement, and 2% mention that the conditions have worsened. In the case the conditions have worsened, we also ask further questions and try to provide support to these people. In these times, Ayushman Bharat also has been supporting COVID care under the leadership of the Ministry of Health, and following the protocol and guidelines provided by Ministry of Health and ICMR. We have first tried to focus on getting more hospitals impaneled, and as you know that many hospitals have scaled back their operations, so we need more hospitals both for COVID but also for non-COVID cases, because as you know, because many hospitals are providing dedicated COVID services, so the other services that they were providing, including critical care, has to be provided by other hospitals, and we have impaneled more than 1,000 hospitals in last 1.5 months under this express drive that we've done to get more hospitals on board. We've also included COVID-19 testing and treatment packages, and so far more than 2,000 people have been provided treatment under COVID-19, and more than 3,000 patients have been tested
under COVID-19, for COVID-19. Third, we are also dealing with some private sector providers like Uber and arranging for transport for health workforce in many cities. Using our IT platform, we are also monitoring and tracking SARI treatments and seeing if they are coming from particular hospitals and what kind of follow-up or surveillance we should be doing for those cases, and arranging for testing of those SARI cases so that we can see if they are linked with COVID infection. Teleconsultation is also being done using our call center, where PMJ high-risk beneficiaries, because we have the list of high-risk beneficiaries, people who are elderly, people who have comorbid conditions, and we are calling them to find out if they are doing okay. Also, we are supporting Arogya Setu app, and all those people who report on Arogya Setu about having COVID-like conditions, our call centers and our panel of doctors are providing support to them through our call center. Similarly, as I mentioned earlier, we are providing PMJ beneficiary outreach through IBRS. We have made more than 3 crore calls to our beneficiaries, giving them advice about how to live in the era of COVID-19. The helpline, COVID helpline 1075 is being run by our call center and hosting about 40 to 50,000 calls every day. And COVID-19 information campaign is on through our social media channels. Finally, sir, I want to tell you that PMJ is not only providing financial protection to poorest 40% of the people in the country, but also creating an ecosystem and helping larger reforms in healthcare. Number one, through our work, we are empowering beneficiaries so that they can seek and demand services in both public and private hospitals. Through our demand side approach, we are also enhancing availability of services, because once there is a demand, there are resources, we believe that supply response will come, greater amount of services, especially from private sector, will be in place, and this is already happening. We are also going to be working on ensuring quality of services through ensuring that private sector, public sector provide not only the services to the poor, but provide quality services to the poor. And we are also controlling prices through collective bargaining. So not only quality services, but quality services on affordable prices. PMJ is also encouraging innovations and doing monitoring of what is happening in the sector. We are also promoting continuum of care and having a better linkage between public sector, private sector, but also primary care and secondary care. We are creating ecosystem for health insurance, and finally we are building basic fundamental blocks for national digital health blueprint. So sir, with this I close my presentation and hand it over back to you. Many thanks, sir, for this very insightful presentation. I now request Dr. V.K. Paul, Member Health, Niti Aayog, to kindly deliver his address. Thank you, Honorable Ministers, viewers, colleagues. It's a landmark day today. The flagship mission for universal health coverage, the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, has today marked 1 crore beneficiaries, 10 million beneficiaries. It's a proud moment. It's a day which will go in the history of the nation as an important milestone, because it represents 3 important principles, 3 facets of the nation's commitment. First, the sankalp or the resolve. Second,
the fulfillment of Siddhi, and third, the partnerships. These are the 3 points that I like to make while celebrating and being proud on this day that the benefits have reached 1 crore people and the scheme is moving forward with full partnership of the people and is delivering services in an effective manner. First and foremost, PMJ represents the commitment of the government to provide universal health coverage, to ensure financial risk protection, so that quality services are available to all people of India, all citizens of India. As was stated, Ayushman Bharat has PMJ, which is financial protection, free services, secondary and tertiary hospitalization, and equally importantly, it has the primary healthcare mission by creating health and wellness centers, 150,000 of them by the year 2022. And I'm pleased to say that on that the progress is tremendous. 40,000 such centers have already been established. When you look at the PMJ and its reach today, it is amazing. We started with commitment to cover about 10 crore families, about 500 million people. But by the participation, through the participation of the state government, through their own resources, actual coverage is 13.2 crore families, roughly 65 crore of India people, which is half of India's population. This is an achievement most remarkable, having reached this point in a matter of about 20 odd months. It shows the commitment, how the government has set its agenda toward ensuring universal health coverage to the fullest extent toward the SDGs and to our own national goals. In terms of Siddhi or attainments, several data were provided by Shri Indu Bhushan ji, but let me state that what PMJ ensures is a paradigm shift in healthcare, because what is being delivered is by entitlement. What is being delivered is monitored for its quality, and the feedback from the beneficiaries after treatment ensures that the health system, whether public or private, is accountable. We have used a digital backbone for this program, which is the pride of India, which is the very best in the world, and it has stood the test of time. Today we can say with confidence that the intrinsic design features of this universal health mission, the PMJ, have stood the test of time, that they were of the kind which would withstand our contextual needs and contextual capabilities. Today, therefore, it is a day on which we can say, हमने संकल्प से सिद्धि करके भी दिखाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को इस विषय में हम आगे पूरा करने में काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं, और ये उनकी लीडरशिप का एक नतीजा है, और उन्हीं की लीडरशिप में यहाँ तक हम पहुँचे हैं. But my third point is equally important. That's about partnerships. This is a mission which is a national mission. It is a partnership of the union government and the state government. It's a partnership of private sector and the public sector. And above all, it is a partnership of people of India with the government and government services. This is at the heart of the success that we have reached today, and this is what will take us forward to achieve a milestone of 10 crore beneficiaries who are generally very satisfied with the services. Is a very notable event today. We are proud of this milestone, and as we move forward with the participation of the people of India, the health system and the state governments, we have a bright future for this mission, which will increase its intensity, increase its coverage, and will continue to serve the people of India in coming years. Thank you very much. Many thanks, sir, for your insight and guiding words. May I now invite Shri Ashwini Kumar Chaubey, Minister of State for Health and Family Welfare, to kindly address the audience. भारत के
आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे यहाँ पर वीके पॉल जी जो सदस्य नीति आयोग हैं, डॉक्टर वीके पॉल, साथ ही डॉक्टर इंदुभूषण जी CEO, और हमारे श्री प्रवीण जी जो एडिशनल CEO हैं, और सभी यहाँ आए हुए स्वास्थ्यकर्मी जितने भी NHA के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आयुष्मान भारत के 20 महीने हो रहे हैं, और इस अल्प अवधि में हमने बहुत उतार चढ़ाव भी देखा, और आयुष्मान भारत के इस शुभारंभ काल से मुझे वह भी क्षण याद आ रहा है जब लोकसभा के अंदर हमारे यशस्वी पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि ये गेम चेंजर का काम करेगा, और 11-10.5 करोड़ परिवार के जो गांव के गरीब लोग, ऐसे जो शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, ऐसे लोगों के लिए ये एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 54 से 55 करोड़ लोगों का और 10 करोड़ 60 लाख परिवार का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत ने दुनिया में सबसे बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना, जिसको देश और दुनिया ने सराहा है। जब ये शुभारंभ के काल में ही मैं विदेश के दौरा पर गया था, मुझे याद है अच्छी तरह प्रधानमंत्री जी और उस समय के विदेश मंत्री हमारी बहन सुषमा जी जो अब नहीं रही, उनके मार्गदर्शन में और विश्व के सभी देशों में हमारे मंत्रीगण गए थे। और मैं एक छोटा सा देश जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में तुवालू, मात्र 12,000 का देश है वो, और वहाँ मैं जब गया तो वहाँ भी उस समय आयुष्मान भारत का शुभारंभ नहीं हुआ था, किंतु बजट में आने के बाद दुनिया के सभी समाचार पत्रों में ये सुर्खियों में रहा, और वहाँ लोग पूछते रहे कि अच्छा आयुष्मान भारत का एक टुकड़ा मुझे भी तो दीजिए। प्रधानमंत्री जी का, अब वो समुद्र के सातों समुद्र पार, आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी ललक थी। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी आग्रह कर रहे थे कि हमें भी आयुष्मान भारत का एक टुकड़ा प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मोदी जी का आशीर्वाद हमें चाहिए। ये किस प्रकार से सुदूर वहाँ रहने वाले लोगों में भी ये ललक थी, और आज हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये कदम बढ़ता गया, हमारे देश के कई राज्यों ने इसमें सहभागिता भी जाहिर किया। कुछ स्टेट आए थे, कुछ कारण से वो चले गए, और फिर आने की तैयारी हो रही है। दिल्ली का, जैसे कि इंदुभूषण जी ने कहा कि दिल्ली भी हाल में जुटने वाला है, और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो राज्य हमसे छूटे हुए हैं उनको भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, अन्य ऐसे राज्यों को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देश भर में जो आयुष्मान भारत 1 करोड़ जनसंख्या को हमने पार किया है, 1 करोड़ लाभुक आज देश भर में खड़े हो गए हैं, ये सबसे गौरव की बात है। और 20 महीने के इस कालखंड में हमने 50 करोड़ गरीबों और सबसे निहायत ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करने में हम समर्थ हो पाए हैं। हमारे देश के कमज़ोर और ऐसे नागरिक जो वित्तीय जोखिम संरक्षण प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, उनके लिए समर्पित है। मुझे याद है जब हमारी सरकार 2014 में बनने वाली थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण के पहले ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी। और सचमुच
आयुष्मान भारत आज देश में और दुनिया में, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 में अपने स्वास्थ्य नीति में सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी आरोग्य रहे, भद्र हो, पीड़ित हो और सभी एक दूसरे के कल्याण के लिए आगे आए, यही मानवता है और यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। उसी आधार पर सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर हमारी स्वास्थ्य नीति 2017 की बनी है और हमने पूरी तरह से स्वास्थ्य नीति में यह स्पष्ट दर्शाया है कि हम सब प्रकार के लोगों का होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी जो हमारा होना चाहिए, हम समग्र स्वास्थ्य नीति को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। और आज उसी के आधार पर देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिस कालखंड में ये शुभारंभ हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके सतत प्रयास से और आज हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम पूरे उनके मार्गदर्शन में इस काम को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि आज तक 13 करोड़ और 13.412 करोड़ रुपये इसमें लाभुकों को दिया गया है। 1 करोड़ लाभुकों में ये खर्च हुआ है। लगभग 22,000 के हॉस्पिटल्स, 22,000 हॉस्पिटल्स सरकारी और गैर सरकारी, जिसमें लगभग 9,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जहां इस कालखंड में हमने PM-जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत जहां हमने गरीबों का सेवा करने का एक महत्वाकांक्षी अवसर हमें प्रदान हुआ है, वहीं हमने गांव-गांव में जो हमारे सब सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स या एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो बहुत ही बुरी हालात में थी, हमने उसको भी सुधारने के लिए संकल्प लिया और देश भर में ऐसे 1.5 लाख जो हमारे ऐसे सब सेंटर थे, उसको सुधार करने का हमने काम किया है। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, और इसमें देश भर के 60 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान हो रहा है। आगे कोविड के इस कालखंड में हमने इस आयुष्मान भारत को लोगों से जोड़ने का काम किया, जो ऐसे गरीब, यूँ तो आयुष्मान भारत के अतिरिक्त भी जो भी लोग सरकारी अस्पताल में कोविड के कालखंड में इलाजरत हैं, सरकार उसकी मुफ्त सेवा कर रही है। चिकित्सा में चिकित्सा कर्मियों को, चाहे वो PPEs हो, किट्स हो या मास्क हो, हर प्रकार का, और दवाइयाँ हो, छिड़काव इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां हमारे कुछ इस प्रकार के गरीब बंधु अगर वहां इलाज के लिए, टेस्ट के लिए वहां गए, तो उनके लिए भी ये आयुष्मान भारत में, जो पहले नहीं था, इस महामारी में हमने उनको जोड़ा और इसमें बहुत सारे लोगों का, लगभग 2,500 लोगों ने इसका लाभ इस कोविड के कालखंड में, ऐसे गरीब लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करके और इसका लाभ उठाया है। मुझे लग रहा है कि आज देश और दुनिया में इस प्रकार की जो स्थिति बनी है कि प्रत्येक परिवार का जो 5 लाख रुपया हम लोगों ने किया है, और ऐसे परिवारों को एक हम कह सकते हैं कि उनको उजाला दिखाई पड़ रहा है। उनके जीवन में जहां दवाई के अभाव में, चिकित्सा के, उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में लोग आज देश में गरीबी रेखा से, लगभग 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। ये हमारा सर्वे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 4% पूरे पॉपुलेशन का आज दवाई और चिकित्सा के अभाव में आज वो गहने जेवर और ज़मीन जायदाद बेच करके अपने बंधुओं का इलाज कराते हैं। मुझे याद है जब ये आयुष्मान भारत हुआ, मैं बाढ़ के क्षेत्र का रहने वाला हूँ और हम अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर में जब भ्रमण कर रहे थे, नाव से भ्रमण कर रहे थे, तो बहुत दूर में एक गांव में एक झोपड़ी में पड़ा हुआ एक बूढ़े बाबा ने चिल्लाते हुए कहा कि सांसद जी, बाबा इधर आओ, मुझे भी आयुष्मान भारत का इलाज
करा दो बाबा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात, एक गांव में फंसा हुआ जल के अंदर और अपने झोपड़ी में खड़ा, वो बिछावन पर पड़ा हुआ बीमार है और वो आशीर्वाद दे रहा है कि बाबा इधर आ जाओ, हमें भी इलाज करा दो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का एक गांव के गरीब से लेकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और तमाम लोगों ने जिस प्रकार से इसका स्वागत किया है, आज ये बेमिसाल है, ऐतिहासिक कदम है और दुनिया ने भी इसको सराहा है। मैं आज के इस सुखद अवसर पर अपने तमाम जो डॉक्टर इंदु भूषण सहित सभी ऐसे जो काम कर रहे हैं दिन रात और राज्यों में जो स्वास्थ्य एजेंसी है, मैं उन सब लोगों को पूरी तरह से बधाई देना चाहता हूं कि आपके अथक परिश्रम, आपके मेहनत ने निश्चित रूप से देश और दुनिया को ये दिखा दिया कि हमने गरीबों का जो सेवा हो सकता है, जो चिकित्सा हो सकता है, वो हमने किया है। मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा और नर से नारायण की अगर हमें प्राप्ति होना है तो बिना मानव सेवा का हम नारायण की प्राप्ति नहीं कर सकते। आज इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जब याद दिलाया कि आज 1 करोड़ पूरे हो गए, ट्वीट किया उन्होंने, तो हमें गर्व हुआ कि निश्चित रूप से आयुष्मान भारत का वह सुखद दिन देखने को मिल रहा है और आगे भी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की सोच है, ना केवल 60 करोड़ लोगों को या 55 से 60 करोड़ लोग, देश में ऐसे 100 करोड़ लोगों की योजना भी नीति आयोग और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, उस पर भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विचार विमर्श हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम देश को स्वस्थ भारत बनाएंगे। कोविड के कालखंड में जिस प्रकार से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, इस जोखिम को जिस प्रकार से लड़ने का काम किया है और जो संयम, अनुशासन और पूरी तरह से निष्ठा के साथ हमने जो सहयोग दिया है और कोविड को आज पूरी दुनिया ने ये कहा है कि भारत सबसे बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ रहा है। समय पर लॉकडाउन हुआ और आज चौथे प्रवेश कर गए हम लोग और इसमें हम सब लोगों ने अब जीवन को कोविड के साथ जीने का एक अभ्यास बना लिया है। आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे और हम सब लोग मिल करके इसके अनुशासन को जो व्रत है उसको पालन करते हुए और पूरी तरह से जो बात बार बार कहे जाते हैं कि 2 गज की दूरी और पूरे अपने फेस को ढकें, चाहे वो गमछे से हो, चाहे वो मास्क से हो और साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप, उसका भी हम सब लोगों ने लगभग 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप, जो आपके बगल अगल में कोई संक्रमित व्यक्ति आ जाए तो उसको आपको चिन्हित हो जाएगा। जहाँ तक हमारे आज के इस कालखंड में मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, जो बहुत ही विपत्ति में थे, उनके लिए भी सरकार ने बहुत तरह का सहयोग किया है। चिकित्सा अस्पतालों में उनकी मुफ्त इलाज हो रही है। राज्यों में जहाँ वो वापस जा रहे हैं, लगभग 21 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आज विभिन्न राज्यों में वो गए हैं और उनका वहाँ इलाज हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में उनको अच्छे तरह से उनकी चिकित्सा, खाना पीना, सब प्रकार की उनकी व्यवस्था हो रही है और वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। इससे हमने मजदूरों के प्रति भी हमारी सरकार को दर्द है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने 3800 करोड़ की योजना बना करके और उन गरीबों के लिए जो प्रवासी मजदूर भाई थे, उनके 2 महीने के भोजन के लिए और उनको 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, गेहूँ, ये सब देने का काम किया है। मुफ्त रूप से अगले 2 महीने तक ऐसे श्रमिकों को प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, अगर इस खजाने पर किसी का अधिकार है तो श्रमिकों का पहला अधिकार बनता है और उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी बंधुओं का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे अपने राज्य स्वास्थ्य एजेंसी भारत सरकार का, जो NHA ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो मैं सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव से हम सब लोग आगे काम करते रहें। चले बेटी, चले बेटी, चले बेटी, निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, देश का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।
Thank you, sir, for taking us down the memory lane and sharing your rich experience and words of encouragement. In its pursuit of making Ayushman Bharat a more open platform, the National Health Authority has recently developed different tools that will be launched today. The National Health Authority has developed a PMJ WhatsApp chatbot. Anyone now will be able to access all information on the screen, on the scheme through its intuitive interface. I request Honorable Minister Dr. Harshvardhan to please officially launch the PMJ chatbot. Volume. It's just a click away. Simply ask Master Ayushman on WhatsApp. Just say him hi to have all the information related to India PMJAY at your fingertips. Want to know details of nearest impaneled hospitals? Benefits of the scheme. Or you may be interested to know details about free test and treatment of COVID-19. You will get all the answers on your screen in fractions of a second. Just remember, 98689-14555. It's not just a number, it's a new way to stay connected with us. And that too through your WhatsApp. You can also avail this information through our website www.pmjay.gov.in. Swastika Vardhan, Ayushman. Created a commemorative PMJ beneficiary e-card with 1 crore. I request Honorable Minister to please. इसको भी रखा 1 मिनट पहले बताइए Website, which I would request Honorable Minister to please officially launch. नहीं Next up is the तो नेट पर खुला हुआ खुल गई है क्लिक कर दिया खुल गया The National Health Authority has created new dashboards to deepen the monitoring of the scheme and share regular updates. These are the PMJ Public Dashboard, Hospital Ranking Dashboard, and a Medical Colleges Performance Dashboard. I request Honorable Minister to please launch these dashboards. Under Ayushman Bharat PMJAY, our primary objective is ensure access to free treatment for each one of the 50 crore beneficiaries. Every day, new beneficiaries are getting e-cards, availing free treatments. New hospitals are getting empaneled. We are moving towards making free health facilities available for all a reality. As the world is curious to know about world's largest publicly funded health assurance scheme, National Health Authority has taken a step towards making real-time information about the scheme available to public. Just visit www.pmjay.gov.in. You may wish to know more about impaneled hospitals
under the scheme or any information related to claims. Our public dashboard provides details in the most transparent and simplest way possible. One of our most important goals is to provide beneficiaries hassle-free and utmost quality of care through empaneled hospitals. To ensure that, we are introducing Hospital Ranking Dashboard, which is a revolutionary step towards enhancing the quality measures and indicators of healthcare delivery across all empaneled facilities. The hospitals are ranked under 5-star rating system. You can visit our website www.pnjay.gov.in to know more about progress of the scheme and check ranking of all the empaneled hospitals at district, state and national level. When it comes to providing better healthcare facilities to our beneficiaries, it becomes extremely important to continuously monitor the performance of empaneled service providers. With this objective, National Health Authority has launched a hospital performance dashboard where you can see performance reports of all empaneled hospitals. The reports are updated on a real-time basis. Stakeholders at national, state and hospital level get access to all the data 24/7. I would like to share with everyone that Dr. Harshvardhan has been appointed as the chairman of the World Health Organization Executive Board and will take charge today, succeeding Dr. Hiroki Nakatani of Japan. We would like to congratulate Sir for this richly deserved appointment and honor. भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे नीति आयोग के स्वास्थ्य से जुड़े हुए सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी, हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर इंदु भूषण जी, उनके सहयोगी डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर विपुल अग्रवाल जी, यहाँ आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित सभी स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी साथीगण, मीडिया के उपस्थित मित्रगण और इसके साथ साथ सारे देश में जो मुझे जानकारी मिली कि इस आयुष्मान भारत योजना के महान यज्ञ को सफलतापूर्वक जो लगातार निस्वार्थ भाव से आहुति दे रहे हैं, ऐसे हमारे कई हजार विभिन्न स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो भारत सरकार से जुड़े हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हों, चाहे वो सरकारी अस्पतालों से जुड़े हों, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हों, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हों, ऐसे बहुत स्तर पर बहुत सारे देश के लोग आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और सबसे बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम को और इस योजना को भारत के अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त है और जिनके विजन के कारण, जिनकी दूरदर्शिता के कारण, जिनके गरीबों के प्रति एक अत्यंत संवेदनशील भाव के कारण इस आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हृदय, मन और आत्मा के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कल
सबसे पहला भारत के अंदर किसी ने इस अवसर पर अगर किसी ने ट्वीट किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उन्होंने इस अवसर को अपना बहुत महत्वपूर्ण भी बनाया, बहुत सात्विक भी बनाया, और देश के हज़ारों लाखों करोड़ों गरीब लोगों की उनको इसके कारण दुआ मिली। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, और जो भी लोग इस योजना के साथ जुड़े हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस योजना के साथ किसी भी रूप में आपको जो जुड़ने का मौका मिला है, आप किसी भी रूप में अगर कोई नौकरी भी कर रहे हैं तो ये नौकरी नहीं है, ये आपको भगवान का आशीर्वाद मिला है एक बहुत ही बड़े सेवा के काम के साथ जुड़ने का, और इसको आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आशीर्वाद मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज जब ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर निर्माण भवन में तीसरी मंजिल पर एक छोटे से देखने में कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ और आयुष्मान भारत की योजना के साथ हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की भावना जुड़ी है। आज हम एक असाधारण परिस्थिति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके कारण ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम देश के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण उसने सारे देश और सारी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन हमारे इस संक्रमण के काल में हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको अभी तक बहुत ही सफलतापूर्वक लड़ा है, और 135 करोड़ लोगों के देश में हम सब ने मिलकर इस बात का प्रयास किया है कि हम अपने भारत के अधिकांश लोगों को इसकी तकलीफ़ के साथ बचा सकें। दुनिया के छोटे बड़े सब देशों से ज़्यादा बेहतर भारत के लोगों ने मिलकर अपनी कोरोना के खिलाफ कमिटमेंट को, डिसिप्लिन को, अनुशासन को मानकर उसमें सम्मिलित होकर सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करके, छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान करके अपने परिवार के, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, अपने साथी, उन सबके स्वास्थ्य की भी रक्षा करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी निभाते हुए हमने आज भारत में ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि हम अपने अधिकांश मरीजों को ठीक करके घर भेज चुके हैं। आज अगर देश में 1 लाख मरीज 135 करोड़ में कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो उसमें से 40,000 से ज़्यादा मरीज अपने घर खुशी खुशी वापस लौट चुके हैं, और बचे हुए 60,000 से ज़्यादा मरीजों में अधिकांश रोड टू रिकवरी पर हैं। बहुत जल्दी शीघ्र होकर वो भी अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे, और दुर्भाग्यपूर्ण
जिन लोगों की कष्टदायक मृत्यु हुई है, हम सब के लिए दुख का कारण है। उनके सबके परिवारों के प्रति हम सब लोग संवेदना भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम सबको कम से कम ये संतोष है कि हमने अपने भरपूर प्रयास करके अपने भारत के अंदर इस मॉर्टैलिटी रेट को भी बहुत ही निम्न स्तर पर रखा है। और सारे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी सरकारें, भारत सरकार से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट्स तक, सभी सरकारों में सभी विभाग प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अनेक प्रकार की समय समय पर बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद भी हम इसके ऊपर एक निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। अभी जब आयुष्मान भारत योजना का 1 साल हुआ था, तो शायद 23 सितंबर को वो पूरा हुआ था, लेकिन हमने 30 सितंबर के करीब एक बड़ा कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया था। अभूतपूर्व कार्यक्रम था वो। अभूतपूर्व ढंग से प्रधानमंत्री जी ने देश के सब प्रांतों से उस कार्यक्रम में आए हुए उन गरीब लाभार्थियों से बहुत विस्तार से बातचीत की थी। वो बहुत ही मार्मिक दृश्य था। और फिर उन्होंने सारे देश के अंदर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सब प्रकार के लोगों को, डॉक्टरों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सबको अपना मार्गदर्शन दिया था। मैं अभी बैठे बैठे याद कर रहा था, इस कार्यक्रम का जन्म हुआ, इस कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री जी की भावना किस प्रकार से जुड़ी थी। कोई शायद कैबिनेट मीटिंग ऐसी नहीं होती थी जिसमें आयुष्मान भारत की चर्चा नहीं होती थी। हर थोड़े दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग्स में आयुष्मान भारत योजना के बारे में प्रेजेंटेशंस होते थे। सारे मंत्री परिषद के साथियों को आयुष्मान भारत की प्रोग्रेस से पूरी तरीके से उनको बताया जाता था, उसकी जानकारी दी जाती थी, पूरी तरह से उसका परिचय उनको कराया जाता था। और जब आयुष्मान भारत योजना ने धीरे धीरे कदम अपने आगे बढ़ाने शुरू किए, तो एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा कि मैं चाहता हूं कि ये योजना में कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी गरीब आदमी को देश के अंदर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और इसके लिए आप सब लोग, जिन गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है, उन लोगों से जाकर मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करिए और उसके बाद मुझे आके बताइए कि उनकी बातचीत के अंदर आपको योजना में सुधार के लिए क्या क्या बातें आपके ध्यान में आई हैं, और फिर उन बातों को हम लोग अपनी योजना के अंदर सुधार करने के लिए लागू करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मुझे ख्याल है कि मैंने भी ऐसे बहुत सारे मरीजों के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर संपर्क किया। दिल्ली में यह योजना लागू नहीं थी, लेकिन भारत सरकार के कई अस्पतालों में, खासकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, दिल्ली के बाहर के मरीज जो लाभार्थी थे
वो यहाँ पर आकर इस योजना का लाभ उठाते थे, ऑपरेशन अपने कराते थे। और ऐसे बहुत सारे मरीज़ों की हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, राम मनोहर लोहिया से लिस्ट ली। वो दिल्ली से बाहर रहते थे, लेकिन दिल्ली से बाहर आसपास के गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादनगर, इस तरह के इलाकों के अंदर जाकर ऐसे बहुत सारे परिवारों के साथ घर में जाकर हम लोगों को मिलने का मौका मिला। और मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता उन परिवार के लोगों की भावनाओं को, किस प्रकार से अत्यंत भावुक होकर वो कहा करते थे कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के कारण उनके परिवार के अंदर उनकी बच्ची का, उनकी माता का, उनके पिता का, पत्नी कहती थी मेरे शौहर का, कैसे इलाज हुआ और कैसे उसके प्राणों की रक्षा हुई। और हमने स्वयं बहुत सारे मरीजों को आंखों में आंसू लेकर, आंख से आंसू डबडबा रहे हैं, और वो कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए सबसे बड़े मसीहा हैं। अगर वो ना होते, उनकी ये योजना ना होती, तो आज मेरे इस शौहर की जो प्राण है इसकी रक्षा नहीं हो सकती थी। ऐसे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स को हम लोगों ने कैप्चर किया, प्रधानमंत्री जी को आके बताया। वो जो भी सुझाव देते थे या कोई भी जानकारी उनसे बातचीत के बाद मिलती थी, वो जब हम लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते थे तो उसके अनुरूप दिन प्रतिदिन हमने देखा कि कार्यक्रम के अंदर एक एक करके अनेक प्रकार के गुणात्मक सुधार होते गए। और वो करते करते आज हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है कि हम वो दिन, भले ही आज हम कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन आज हम 1 करोड़ देश के अंदर, 135 करोड़ के देश में, जहां हमने संकल्प लिया कि 55 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को कम से कम शुरुआती सालों में हम आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे, और उसमें से 1 करोड़ गरीब लोग अब तक लाभार्थी बन चुके हैं। इनको अनेक प्रकार के माध्यमों से हम लोग सूचना दे चुके हैं। जैसा बताया गया कि शायद 14,000 करोड़ रुपए के लगभग का लाभ इन गरीब लोगों को मिल चुका है, और शायद 12-13 करोड़ लोगों के हम कार्ड बना चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस दिशा के अंदर हमको इस यात्रा को और तेज़ी से सफ़र को तय करना है। 55 करोड़ लोग, ये पूरे 10.74 करोड़ परिवार, इनका एक एक सदस्य, उसको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि वो कभी भी अस्वस्थ हो जाए, कभी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाए, कभी भी बड़े से बड़ा कोई भी ऑपरेशन उसको करने की मजबूरी जीवन में आ जाए, तो हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में, वो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में है, तो उसका देश के किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में, और ऐसे अस्पताल सरकारी भी और प्राइवेट भी, उनकी संख्या भी आज करीब 22,000 के आसपास हो गई है, वो अपना इलाज करा सकता है। कई हज़ार गरीब लोग पैदा कहीं हुए, रहते कहीं थे,
अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए काम कहीं करते थे और बीमार कहीं और किसी प्रांत में पड़ गए, ऐसे हजारों गरीब लोगों का उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले हमारे करीब 1 साल और 7-8 महीने का जो ये पीरियड है, इसके अंदर देश में हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के दौरान सारे देश के अंदर लाखों हमारे श्रमिक भाई, उनकी बुजुर्ग माताएं, बच्चे एक स्थान पे जहाँ काम करते थे या तो वहाँ पर फंस गए या दूसरे स्थान पर फंस गए, या अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितनी प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं, असाधारण परिस्थितियों के अंदर रहना पड़ रहा है। भगवान ना करे ऐसे किसी को भी अगर कोई बड़ी तकलीफ़ हो जाए तो घर से दूर असाधारण परिस्थिति के अंदर किस प्रकार से उनको आयुष्मान भारत योजना एक संजीवनी के रूप में आशीर्वाद दे सकती है, इसकी कल्पना आज के हम इस समय के अंदर अच्छी तरीके से ज़्यादा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का हृदय बहुत संवेदनशील है। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। पिछले 6 साल के अंदर उनकी किसी भी योजना के बारे में हम अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उसमें अगर कोई सबसे बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर होता है, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो वो देश के गरीब, मजदूर, किसान, इसके हित से जुड़ा हुआ होता है। और अभी हमने देखा कि कोरोना के अंदर भी, कोरोना से भी पीड़ित व्यक्ति अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए चला जाएगा तो उसका सब प्रकार का इलाज, टेस्ट से लेकर और उसके आईसीयू के अंदर जाने तक की अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आ जाए तो भी वो सारा कुछ भी सारे देश में जो है उसका इस आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा। इसको भी तुरंत योजना के रूप में जो है इसमें शामिल किया गया। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी और नोटबंदी के अंदर बहुत सारे लोगों को देश में कहा गया कि आपको अगर अपना अनडिक्लेयर्ड जो धन है उसको ये फलानी स्कीम के अंदर आप उसको वापस जमा करें तो आपको भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन उस योजना को जब लागू किया तो घोषणा की गई और उस योजना से सरकार ने जितना भी हज़ारों करोड़ रुपया मान लीजिए बचाने के लिए प्रयास किया, वो सारा का सारा गरीबों के कल्याण की स्पेसिफिक योजनाएं बनाकर उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अभी हमने देखा कोरोना का संक्रमण जब हुआ, लॉकडाउन हुआ, गरीब लोग विभिन्न स्थानों पर देश के अंदर फंसे, तो सबसे पहला प्रश्न आया कि उनके लिए जब उनका रोज़गार छूट गया है तो उनके लिए किस प्रकार से हम सहायता करें, किस प्रकार से उनके लिए व्यवस्था करें। तो मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर दिया। यूँ तो पहले से ही 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन खातों के माध्यम से जिस देश में 1 रुपये के बदले 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता था, वहाँ 1 रुपये के बदले 100 पैसा पहले से ही पहुंचना शुरू हो गया था। वहाँ इस कोरोना के संक्रमण के काल में प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि हर गरीब के खाते में इस समय पैसा भी पहुंचना चाहिए। हर गरीब को पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए राशन भी उपलब्ध होना चाहिए, और राशन इत्यादि उपलब्ध हो भी गया तो भी शायद उसको हो सकता है कि खाना पकाने की और वो सारी व्यवस्थाएं ना हो, तो सारे देश में
स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, भारत सरकार के सहयोग से और जो उनके लिए पूरी पर्याप्त मात्रा के अंदर भोजन की व्यवस्थाएं करना, देश में काम करने वाले एनजीओज को सब प्रकार की सहायता भारत सरकार की ओर से, संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिलवाना और सबके गरीबों के भोजन की व्यवस्था करना। और जब लॉकडाउन के 2 फेज हो गए और देखा कि गरीब लोग जहाँ कहीं भी फंस गए हैं, वो तड़प रहे हैं, वो बेचैन हैं, अपने घर जाने के लिए बेचैन है, अपने माता पिता से मिलने के लिए बेचैन है, अपने गांव में जाने के लिए बेचैन है, तो विषमतम परिस्थितियां होने पर भी उन्होंने रेल मंत्रालय को कहकर उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स को शुरुआत कराया और लाखों की तादाद में जो है आज हमारे गरीब श्रमिक भाई, उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और जो भी बातें समय समय पर ध्यान में आती हैं, जैसे कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज पर्याप्त नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतन करते रहे, विचार विमर्श करते रहे, मुख्यमंत्रियों को 5 बार उन्होंने सुना, उनकी जो भावनाएं थी, उनकी तकलीफ का जायज़ा लेते रहे, उसकी डायग्नोसिस करते रहे, एक्सपर्ट्स से बातचीत करते रहे और समाज में सब प्रकार के लोगों से बातचीत करने के बाद एक दिन उन्होंने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना रखी। कैसे आने वाले वर्षों में विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर भारत दोबारा से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच सकता है। इतनी सारी योजनाएं देश के सामने रखी और जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बड़े पैमाने पर विकसित करने की योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान भारत को और प्रभावी बनाने की योजनाएं हैं, गांव के अंदर ब्लॉक स्तर पर लेबॉर्ट्रीज बनाने की योजनाएं हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ के अस्पताल बनाने की योजनाएं हैं। यानी 20 लाख करोड़ की योजनाओं को वित्त मंत्री को देश को बताने के लिए शायद 5 या 6 दिन तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये प्रधानमंत्री जी का है जज्बा गरीबों के प्रति, गरीबों के कल्याण के प्रति। गरीब, मजदूर, किसान, ये हमारे देश के प्राण हैं, ये हमारे देश की आत्मा है। इनके मेहनत के कारण हमको जो भारत देखने को मिलता है, वो उसके अंदर इनका खून पसीना बहा है और उनके सब प्रकार से हितों की रक्षा करना ये हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। इसी भाव से आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जी ने जन्म दिया, उसको सब प्रकार से सींचा, सब प्रकार से आशीर्वाद दिया और उस सब का ये सुपरिणाम है कि आज हम मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ भारत के अंदर लाभार्थी हो चुके हैं। इस अवसर पर हम नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। आज कोरोना के तकलीफ़ के युग में एक एक गरीब भाई को हमें कोरोना से बचाना है, उसके प्राणों की रक्षा के लिए सब प्रकार की चिंता और चिंतन करना है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी उसके लिए इलाज की व्यवस्था करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब देश निर्णय कर लेता है कि हमें एक जानकारी को एक एक व्यक्ति तक पहुँचाना है, तो जब दिमाग चलाया जाता है तो उसमें बहुत नए नए इनोवेटिव तरीके ध्यान में आते हैं। और हमने कोरोना में देखा कि यूँ तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन अगर देश के लोगों को ये बताना था कि आपको अपने प्राण की रक्षा के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, अपने साबुन से, पानी से हाथ धोना ज़रूरी है, अपने गंदे हाथों को नाक में, मुंह में नहीं लेके जाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और
कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना है तो भारत ने 117 करोड़ टेलीफोन के सब्सक्राइबर्स के फ़ोन में कॉलर ट्यून के माध्यम से एक संदेश को बार बार देकर देश के बच्चे को एजुकेट कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों के लिए जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, आयुष्मान भारत और पीएमजे, जो हमारा ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं, इनको प्रभावी ढंग से सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम इसके जो भी लाभार्थी हैं, चिन्हित लाभार्थी हैं, वो जानकारी के अभाव में बीमार ना रह जाएं, जानकारी के अभाव में वो सुविधा से वंचित ना रह जाएं, इसकी भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और इस नाते आने वाला समय हमें बड़े पैमाने पर इस बात के लिए फोकस करना चाहिए कि जब हम अगला बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, अगले किसी टारगेट को अचीव करने के बाद उसकी सफलता का विश्लेषण इस प्रकार से कर रहे हो, तो हम बहुत और नए आधुनिक इनोवेटिव तरीक़ों से जानकारी को उन लोगों तक विशेष रूप से पहुंचाएं जिनके लिए आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी संजीवनी है और जिनके प्राणों की रक्षा करना ये हमारा सबका महान कर्तव्य है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना के बहुत सारे पक्ष हैं, उन सब पक्षों के ऊपर बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से किया गया है। जिन लोगों ने इस योजना का दुरुपयोग करने की कोशिश की होगी, किसी भी प्रकार से इसके अंदर फ्रॉड करने की कोशिश की होगी, हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वो फ्रॉड को भी अर्ली डिटेक्शन करने का काम किया है। बहुत सारे अस्पताल जिनको कि हम उस फ्रॉड डिटेक्शन में पकड़ पाए, उनको हम लोगों ने नेम एंड शेम भी किया है। लेकिन ये लोगों को पनिश करना, ये हमारे को कोई अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग इस योजना के साथ जुड़े हैं, सरकारी सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, वो इसको एक ईश्वरीय कार्य है इस भावना से करें। इसके अंदर से कोई हमको बहुत बड़ी आमदनी होगी, आमदनी तो होगी ही, लेकिन उसको बाय प्रोडक्ट की तरह लें। लेकिन हमारे लिए जो है ये ईश्वरीय कार्य है, इस भावना से अगर हम सब लोग मिलकर करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस सात्विक भाव से इस योजना को प्रारंभ किया है, उस भाव को सफलता में परिवर्तित करने में और देश के अंदर जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही वो ईश्वर की सेवा है, इस भाव को हम और बेहतर ढंग से दोबारा से पुनर्जीवित करने में सफल होंगे। मैं आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़े हुए सभी अपने देश भर के साथियों को, कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर इंदु भूषण जी की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ और इस अवसर पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय आयुष्मान भारत। We look forward to your continued guidance and support as our health minister as India moves from a COVID world into a post-COVID world and looks towards a new era of public health. I now request Dr. Praveen Gedam, Additional CEO, National Health Authority, to kindly deliver the vote of thanks and close the session. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Honorable Member of Niti Aayog, Honorable CEO of NHA, and ladies and gentlemen.
his hard work towards achieving this milestone. His pursuit for excellence and his ideas inspire us every single day. Doctors, paramedics and other hospital staff, Pradhan Mantri Arogya Mitras, VLEs and to this milestone. I also thank our friends in media for taking our message to the intended beneficiary and shall continue our efforts to make our Bharat an Ayushman Bharat. Thank you. Chaubey ji and Dr. V.K. Paul. So sorry sir about the glitches. So webinar